آپریشن عزم استحکام کو غلط سمجھا جا رہا ہے۔ عزم استحکام کا موازنہ ضرب عزم اور راہ نجات سے کیا جا رہا ہے۔ ملک کے پائیدار امن و استحکام کے لیے ویژن کا نام عزم استحکام رکھا گیا۔ وزیر اعظم آفس کی جانب سے جاری اعلامیہ میں کہا گیا، اس وقت ملک میں کوئی نو گو ایریا نہیں، بڑے پیمانے پر کسی فوجی آپریشن پر غور نہیں کیا جا رہا۔ گزشتہ آپریشنز میں دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا۔ متاثرہ علاقوں سے دہشت گردی کے خاتمے کی ضرورت تھی۔ عزم استحکام کا مقصد نظر ثانی شدہ قومی ایکشن پلان کے جاری نفاذ میں نئی روح اور جذبہ پیدا کرنا ہے۔ قومی ایکشن پلان سیاسی میدان میں قومی اتفاقی رائے کے بعد شروع کیا گیا ہے۔ ایف آئی اے کی منی لانڈرنگ اور غیر قانونی اثاثے بنانے پر کارروائی۔ صابر مٹھو کو 27 جون کو طلب کر لیا۔ ایف آئی اے نے حامد مشتاق کو بھی طلب کر لیا۔ صابر مٹھو کو زیر تفتیش غیر قانونی پراپرٹی کی خرید و فروخت میں ملوث ہونے پر طلب کیا گیا۔ صابر مٹھو کو اینٹی کرپشن پنجاب نے بھی انکوائری کے لیے 26 جون کو دوپہر 12 بجے طلب کر لیا۔ کراچی میں شدید گرمی یا کوئی اور وجہ، شہریوں کے امراض میں بے تحاشا اضافہ ہو گیا۔ ایک ہفتے کے دوران ایدی ویلفیئر کے سرد خانوں میں 526 افراد کی لاشیں لائی گئیں۔ ایدی ویلفیئر کے مطابق ایک ہفتے کے دوران لائی گئی لاشوں میں 4 گنا اضافہ دیکھنے میں آیا۔ پیر کے روز 86 لاشیں سرد خانے لائی گئیں۔ 23 جون کو 140، 22 جون کو 90 لاشیں سرد خانے لائی گئیں۔ کراچی میں موسم شدید گرم، سورج دن بھر آگ برساتا رہا۔ شہر کا پارہ 41 تک پہنچ گیا۔ گرمی کی شدت 48 سے 50 ڈگری تک محسوس کی گئی۔ ہوا میں نمی کا تناسب 39% ریکارڈ کیا گیا۔ سمندری ہوائیں بھی بند، سہ پہر میں بادلوں کی انٹری۔ شہر کے مضافاتی علاقوں میں ہلکی بارش، گرمی کی شدت قدرے کم ہو گئی۔ سندھ میں مزید 3 دن موسم مزید گرم رہنے کے امکان پر الرٹ جاری کر دیا گیا۔ کراچی میں شدید گرمی، دودھ دینے والے جانور بھی متاثر۔ 3 دن میں 400 سے زائد جانور بھی ہلاک ہو گئے۔ روزانہ 100 جانوروں کی اموات ہونے لگیں۔ ذرائع کے کیٹل کالونی کے مطابق گرمی کے دوران ویٹنری ڈاکٹرز بھی غائب۔ ترجمان ڈیری فارمرز ایسوسی ایشن نے کہا، بروقت علاج نہ ہونے سے نقصان کا سامنا ہے۔ جانوروں کے متاثر ہونے سے شہر میں دودھ کی پیداوار بھی متاثر ہے۔ شدید گرمی اور لوڈ شیڈنگ کا وبال، کراچی میں شہریوں کا برا حال۔ شہر کے کئی علاقوں میں بجلی کی 12 سے 14 گھنٹے تک بندش۔ بجلی کی طویل بندش، لوڈ شیڈنگ پر عوام سڑکوں پر نکل آئے۔ مختلف علاقوں میں احتجاج کیا۔ نیشنل ہائی وے ملیر کالا بورڈ پر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ سڑک کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا۔ احتجاج میں خواتین اور بچے بھی شریک ہوئے۔ جماعت اسلامی کا لوڈ شیڈنگ کے خلاف 26 جون کو شاہراہ فیصل پر دھرنا دینے کا اعلان۔ احتجاج اور گریڈ اسٹیشنز پر دھاوے بھی خیبر پختونخوا میں لوڈ شیڈنگ کم نہ کرا سکے۔ صوبے کے بیشتر علاقوں میں بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ۔ پیسکو کے ترجمان نے کہا، لوڈ مینجمنٹ ریکوری اور لاسز کے تناسب سے لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ ملک بھر میں بجلی کا شارٹ فال 6419 میگا واٹ تک جا پہنچا۔ بیشتر علاقوں میں 6 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ۔ لائن لاسز والے علاقوں میں 12 سے 14 گھنٹے تک بجلی کی بندش۔ پی ٹی آئی جے یو آئی کے بعد اے این پی نے بھی آپریشن عزم استحکام کی مخالفت کر دی۔ تینوں سیاسی جماعتوں کا آپریشن عزم استحکام شروع کرنے پر تحفظات کا اظہار۔ عوامی نیشنل پارٹی نے عزم استحکام آپریشن کا فیصلہ یک طرفہ قرار دے دیا۔ کہا، آپریشن پر کسی کو اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ صوبوں کو ان کا حق نہیں ملے گا تو ملک میں دہشت گردی بڑھے گی۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں، آپریشن عزم استحکام عدم استحکام ثابت ہوگا۔ ریاست کی رٹ نہ ہونے کے برابر ہے۔ خیبر پختونخوا میں سورج غروب ہوتے ہی پولیس تھانوں میں چھپ جاتی ہے۔ جمہوریت اور پارلیمنٹ اپنا مقدمہ ہار چکی ہے۔ فیصلے کوئی اور کرتا ہے، ذمہ داری سیاست دانوں پر ڈالتی جاتی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کو ہر شعبے میں اپنی بالادستی کو ختم کرنا ہوگا۔ ایپیکس کمیٹی میں آپریشن عزم استحکام کی کوئی بات نہیں ہوئی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا دعویٰ، کہا ایپیکس کمیٹی میں صرف عزم پاکستان کی بات ہوئی تھی۔ آئی ایس پی آر نے بھی آپریشن کی بات نہیں کی۔ آپریشن پر سب کو اعتماد میں لیا جائے۔ وہ آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔
दहशत गर्दी के खात्मे के लिए हर हद तक जाने को तैयार हैं। अली अमीन गंडापुर के जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत केपी हाउस में इजलास भी हुआ। एपेक्स कमेटी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने ऑपरेशन पर कोई इख्तलाफ नहीं किया। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मुखालफत करने वालों के पास कोई जवाब नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स विद मालिक में गुफ्तगू। कहते हैं एतराज़ करने वाली सियासी जमातों का खैबर पख्तूनख्वा में वोट बैंक का झगड़ा है। मौलाना फजल रहमान का बयान सिर्फ एक सियासी बयान है। काबीना में MQM, पीपल्स पार्टी, IPP सबसे मुशावरत होगी। असेंबली में भी इस पर बातचीत होगी। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम होकर रहेगा। हुकूमती सेनेटर्स ने वाज़े कर दिया। फैसल वाबरा बोले, दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन होने जा रहा है। ये मुल्क किसी की ज़ाती जागीर नहीं। शरी रहमान बोली, एपेक्स कमेटी में फौजी ऑपरेशन की मंजूरी तमाम वज़राए आला की मौजूदगी में दी गई। क्या अपोजिशन चाहती है दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन और अमन बहाल ना हो? ये तालिबान खान का तहफ़्फ़ुज़ मांगते हैं और दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन नहीं चाहते। सेनेट इजलास में PTI अरकान का एहतजाज, चेयरमैन राइस का घेराव, ऑपरेशन के खिलाफ नारे लगाए। मखसूस नशिस्तें कम अज कम 10% सीटों वाली जमात को ही मिलेंगी। अगर आज़ाद अरकान 90% भी हो तो मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी। सुन्नी इत्तेहाद के वकील के सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े कर दिया। वकील फैसल सिद्दीकी ने मौक़िफ़ अपनाया। जस्टिस मंसूर शाह ने कहा था 80% लोग आज़ाद हो जाते हैं तो क्या 10% वाली जमातों को सारी मखसूस नशिस्तें दे देंगे? चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने रिमार्क्स दिए, जी बिल्कुल आइन यही कहता है, किसी की मर्जी पर अमल दरामद नहीं हो सकता। मजीद कहा, आपको 80 से ज़ायद सीटें मिलेंगी। आपको फायदा हुआ, कुछ छीना नहीं गया। वक्त आ गया मुल्क आइन के मुताबिक चले। PTI उम्मीदवारों ने दूसरी जमात में शामिल होकर खुदकुशी क्यों की? मखसूस नशिस्तों पर आइन वाज़े है। आइन से हटकर कोई जज फैसला नहीं दे सकता। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के रिमार्क्स। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने पूछा, 86 उम्मीदवार एक फर्द वाली जमात में क्यों शामिल हुए? वकील सलमान अकरम राजा ने कहा, PTI उम्मीदवार मजबूरी में सुन्नी इत्तेहाद में शामिल हुए। चीफ जस्टिस ने कहा, मजबूरी हो तो क्या आइन और कानून को नहीं माना जाता? फैसल सिद्दीकी और सलमान अकरम के दलाल मुकम्मल, मजीद समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस ने कहा, तीसरा दिन नहीं देंगे, बाकी वकला दलाल मुख्तसर रखें। मखसूस नशिस्तें किसको मिलनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट में PTI और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकला में इख्तलाफ। जस्टिस मुनीब अख्तर ने पूछा, सलमान अकरम कह रहे हैं मखसूस नशिस्तें PTI को मिलनी चाहिए। फैसल सिद्दीकी से पूछ लेते हैं। सुन्नी इत्तेहाद के वकील फैसल सिद्दीकी ने सलमान अकरम के मौक़िफ़ से मुखालफत कर दी। कहा, मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद को मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में 3 नए जजों के तकर्रुर का मामला, नोटिफिकेशन जारी। जस्टिस अकील अब्बासी, जस्टिस मलिक शहजाद खान और जस्टिस शाहिद बिलाल सुप्रीम कोर्ट के जज तैनात होंगे। तीनों जज आज सुप्रीम कोर्ट में हल्फ उठाएंगे। जस्टिस सज्जाद अली कायम मुकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और जस्टिस शफी सिद्दीकी कायम मुकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट तैनात होंगे। सदर मुमलिकत ने आर्टिकल 177 के तहत तैनातियों की मंजूरी दे दी। 190 मिलियन पाउंड नैब रेफरेंस बानी PTI की जानिब से मुचल के अदालत में जमा। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वराश ने बानी PTI की जमानत पर रिहाई की रोककारी जारी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने 15 मई को बानी PTI की जमानत मंजूर की थी। बानी PTI दौरान इद्दत निकाह केस में सजा के बायस रिहा नहीं हो सकेंगे। सदर मुमलिकत सिंध में अमन और अमान बरकरार रखने के लिए मुतहरिक कमिश्नर ऑफिस सखर में सदर आसिफ जरदारी की ज़ेर सदारत इजलास। वफाकी वज़ीर दाखिला, वज़ीर आला सिंध, सूबाई वज़रा और दीगर हुक्काम की शिरकत। वज़ीर दाखिला सिंध ने कच्चे में ऑपरेशन के मुतालिक बताया। कहा, 22 से ज़ायद मखमियों को 1 माह में बाजियाब करा लिया गया। DG रेंजर्स ने कहा, पुलिस और रेंजर्स के मुश्तरका ऑपरेशन में सैकड़ों डाकुओं और जराइम पेशा अफराद को गिरफ्तार किया गया। सदर की घिनौने जराइम में मुलव्वस मुजरिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिल गेट्स का नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का दौरा। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक ने ब्रीफिंग की। बिल गेट्स ने NEOC में जदीद तरीन सहूलियात की तारीफ की। अहम शोबे को तरजीह देने के लिए हुकूमत की कोशिशों को सराहा। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के कई शोबों में मदद के लिए बिल गेट्स का शुक्रिया अदा किया। बिल गेट्स वज़ीर आज़म की दावत पर पाकिस्तान के दौरे पर पहुंचे। मुल्क में सरमायाकारी के फरोग के लिए हुकूमत का बड़ा फैसला। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल को डिवीजन का दर्जा दे दिया गया। हुकूमती ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने SIFC को डिवीजन का दर्जा देने की मंजूरी दे दी। दूसरी जानिब वफाकी काबीना का इजलास आज सुबह 10 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। काबीना इजलास का गैर मुलाकाती एजेंडा जारी। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी का इजलास। मॉडल टाउन में इजलास में राना सनाउल्लाह ने ब्रीफिंग दी। पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात पर आगाह किया। नून लीग के सूबाई ओहदेदारों की कारकर्दगी से मुतालिक भी ब्रीफिंग। नवाज शरीफ का पार्टी में बड़ी तब्दीलियों का इशारा। राना सनाउल्लाह को तंजीम साजी के हवाले से रिपोर्ट तैयार करने की हिदायत। इजलास में दहशतगर्दी के खिलाफ शुरू किए गए ऑपरेशन पर फिर ब्रीफिंग। सिंध के सरकारी गोदामों में 37,907 बोरी गंदम चोरी हो गई। वज़ीर आला मुआयना टीम की रिपोर्ट में डायरेक्टर फूड और दीगर को जिम्मेदार ठहरा दिया गया। महकमा खुराक ने रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। कहा इतनी बड़ी तादाद में बोरियों की चोरी नामुमकिन है। चीफ सेक्रेटरी की हिदायत पर महकमा खुराक ने अपनी तहकीकात शुरू कर दी। महकमा खुराक के इंस्पेक्टर और दीगर के बयानात कलमबंद। बोरियों के खाते की भी जांच पड़ताल शुरू। पंजाब असेंबली में तौहीन मजहब के मुतालिक करारदाद मुतफ़िका मंजूर। स्पीकर मलिक अहमद खान ने कहा तौहीन मजहब के वाक़यात इंतहाई तशवीशनाक हैं। हुकूमती रुकन राहीला खादिम ने करारदाद पेश की। कहा गया आइन के तहत जिंदगी का हक सबसे ज्यादा काबिल एहतराम है। पाकिस्तान का हर शख्स आइन की नज़र में बराबर है। मुश्तइल हुजूम के हाथों कत्ल के वाक़यात पर तशवीश है। वफाकी और सूबाई हुकूमतें तमाम शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाएं। तौहीन मजहब के वाक़यात में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब स्कूल रीऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। पंजाब में पहला पब्लिक सेक्टर मॉन्टेसरी प्रोग्राम भी शुरू करने का फैसला। सरकारी स्कूलों के 1000 ग्राउंड्स की 6 माह में तामीर और बहाली का हदफ मुकर्रर। हफ्तावार और माहाना मुकाबले शुरू करने का हुक्म। राजनपुर लैया भक्कर में न्यूट्रिशन प्रोग्राम पायलट प्रोजेक्ट का आगाज अगस्त से होगा। खावर मानिका तशद्दुद केस में नामजद मुल्ज़िम वकील को गिरफ्तार कर लिया गया। वकील फतेहुल्लाह दरख्वास्त जमानत मंसूख होने के बाद कचहरी में छुप गया था। पुलिस ने मुल्ज़िम वकील को तवील इंतजार के बाद गिरफ्तार किया। वकील फतेहुल्लाह के खिलाफ थाना रमना में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत